Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 9 of the course Software Quality Engineering. We are in the part 2A of the course and we are talking about the topics which are related to the software testing. Before we start our further discussion on software testing, let us have a look on what we have explored in the previous lecture. Here is the summary of our last lecture. We discussed the basics of software testing. We highlighted why testing is important and how it plays a role in software quality engineering. We have also examined the history of testing, and we have seen that the concept of software testing has evolved over the years. पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो एक ऑप्शनल चीज़ थी. 1960 से लेकर 1980s तक एक ऑप्शनल चीज़ थी. हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है. कोई डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए नहीं रखे जाते थे. 1980 से ऑनवर्ड बाय 2000 या बाय दी लेट 1990s इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया गया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होनी चाहिए. And after year 2000 and onward, the software testing has become a mandatory part, a must-have part, and now it has been realized that the software testing should have dedicated resources, should have dedicated budget, and the specialized persons, the professional testers, should be hired for software testing. We are convinced and we agree that software testing is the actual activity, is the actual phase which ensures that quality is there in the software. If you remove the testing phase, if you remove the software testing activity in the life cycle of the software, there is no other way to ensure quality in a software. So software testing is a must-have activity, is a must-have phase in the life cycle of a software. We have also examined that there are different phases in testing. You simply do not start by simply testing the code, but you first have a test plan. Then you have test design or design test. In third phase, you have executing the test. And fourth one, when you have some outputs, when you have some findings, when you have some reports, so you actually close or exit your tests. We have seen that there are different ways of testing, there are different types of testing, and there are different levels of testing. A black box testing is one where your software is considered as a black box. You can't actually see what is inside that black box. जिस तरह एक ब्लैक बॉक्स के अंदर के कंटेंट्स नहीं नजर आते और आप नहीं देख सकते, सॉफ्टवेयर को एक ब्लैक बॉक्स के तौर पर कंसिडर किया जाता है. आप सिंपली इनपुट देते हैं, रिगार्डलेस उसके अंदर क्या है और कैसे हो रहा है, और आप आउटपुट देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या आउटपुट यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है. अगर कर रही है, इसका मतलब है कि आपके सॉफ्टवेयर ने ब्लैक बॉक्स टेस्ट पास कर लिया है. इसके बरक्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आप सॉफ्टवेयर के इंटरनल कंपोनेंट्स को डिटेल में चेक करते हैं और आप जो भी उसकी माइन्यूट लेवल की भी डिटेल्स होती हैं, चाहे वो एक इंटीजर की डिक्लेरेशन से लेकर और फंक्शंस की कॉलिंग से लेकर और ओवरऑल जितने भी कंपोनेंट्स एक सॉफ्टवेयर के हो सकते हैं, उन सबको आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग में के थ्रू चेक करते हैं. Let us have a look on what are the outlines of today's lecture. We will be talking about different software testing activities. We will talk about the software testing scope. What do we need to test? Where to start test and where to stop test? Scope, which is very important.
We are also going to talk about some software testing principles. In previous lecture, we discussed the objectives of testing, objective testing. Here we will talk about testing principles. Testing is also a process. How is testing carried out? We are going to look into that. There is a myth in testing. There are some limits of testing, and there are different types of software testing. These are going to be the outline of our today's lecture. So the objectives of today's lecture are to further understand the basics of testing. Testing को आज हम मज़ीद dimensions में मज़ीद explore करेंगे, कुछ मज़ीद new definitions हम देखेंगे कि testing actually है क्या चीज़ testing में आती है और क्या चीज़ testing से बाहर है, और कुछ मज़ीद examples और फर्दर एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम डिस्टिंग्विश करेंगे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग में। आइए कुछ क्लासिकल डेफिनेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया हुआ है। जो अर्लियर मोस्ट डेफिनेशन है हेड्जल की, जो 1973 में प्रेजेंट की गई, वो ये है कि testing is the process of establishing confidence that a program or system does what it is supposed to do. ठीक है, आप टेस्टिंग इस लिए कर रहे हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि ये सिस्टम या ये प्रोग्राम वही कर रहा है जो कि जिसके लिए ये बना है, यानी कि अपने पर्पस को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, सो अगर ये कॉन्फिडेंस आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या टेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। 1973 में हेड्जल एक साइंटिस्ट था या एक सॉफ्टवेयर टेस्टर था, उसने ये डेफिनेशन दी। लेटर ऑन 1979 में मेयर्स ने एक और डेफिनेशन दी, और ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट लगती है, और वो ये है कि टेस्टिंग में एक प्रोसेस है जिसमें आप एक सॉफ्टवेयर को या एक प्रोग्राम को सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी चेक करने की नीयत से एग्जीक्यूट नहीं करते, बल्कि आप उसको इसलिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं ताकि आप उसमें से एरर्स या बग्स निकाल सकें। ठीक है, सो आपका पर्पस सॉफ्टवेयर को रन करना ये है कि आप उसमें से एरर्स को आइडेंटिफाई करें। 1983 में हेड्जल ने अपनी प्रीवियस डेफिनेशन को फर्दर इम्प्रूव किया और एनहांस किया, और एक नई डेफिनेशन के साथ हेड्जल ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को डिफाइन किया, और वो ये है कि टेस्टिंग इज एन एक्टिविटी एम्ड एट इवैल्यूएटिंग एन एट्रीब्यूट और कैपेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम और सिस्टम एंड डिटरमिनिंग दैट इट मीट्स रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, यहां पे टेस्टिंग में ये कहा जा रहा है कि एक प्रोग्राम के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट एबिलिटीज हैं, तो आप हर एट्रीब्यूट को इंडिविजुअली चेक करते हैं, हर एबिलिटी को, हर क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम को या सिस्टम को आप इसलिए चेक कर रहे हैं, इसलिए टेस्ट कर रहे हैं बिकॉज यू वांट टू डिटरमिन कि ये एट्रीब्यूट, ये प्रोग्राम का हिस्सा अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए रिक्वायर्ड रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं। ठीक है, सो अपनी किसी भी सॉफ्टवेयर के कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कई उसकी कैपेबिलिटी हो सकती हैं, उस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को इस लिए इवैल्यूएट करना, ठीक है, इसलिए इवैल्यूएट करना ताकि आप ये देख सकें कि वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, इसको हम टेस्टिंग कहते हैं। सो ये मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। कहीं पे टेस्टिंग को प्रोसेस कहा गया है, कहीं पे टेस्टिंग एक एक्टिविटी है। ठीक है, सो प्रोसेस कहें या एक्टिविटी कहें, सो ये तीन मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। इसके अलावा मोर फॉर्मलाइज्ड डेफिनेशंस भी हैं, IEEE ने कुछ अपनी डेफिनेशंस दी हैं, तो इनमें से कोई भी डेफिनेशन अप्रोप्रिएट हो सकती है, ठीक हो सकती है। मुझे जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन लगती है वो मेयर्स की डेफिनेशन है, जिसमें मेयर्स ने ये कहा है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को या किसी प्रोग्राम को इस नीयत से रन करते हैं क्योंकि आप उसमें से एरर्स निकालना चाह रहे हैं, आप उसमें से एरर्स ढूंढना चाह रहे हैं। सो हियर इज हाउ वी डिफाइन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जिसने हमने पिछले लेक्चर में भी बात की कि पहले एक ऑप्शनल एक्टिविटी, एक ऑप्शनल चीज़ थी, ठीक है, जबकि अब इट हैज़ बिकम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेजेस। ठीक है,
आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में टेस्टिंग का फेज़ होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टेस्टिंग के फेज़ के बगैर आपका सॉफ्टवेयर इनकम्प्लीट है और वो एक अच्छी प्रोडक्ट कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, सो इमेजिन करें कि आपका वाटरफॉल मॉडल है और हम कहते हैं एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड और सपोर्ट। अगर हम टेस्टिंग को बीच में ओमिट कर देते हैं तो ये सॉफ्टवेयर कभी भी एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि इसमें टेस्टिंग नहीं हुई, और टेस्टिंग नहीं हुई तो उसमें ज़रूर एरर्स होंगे, और एरर्स होंगे। सो हमने बात की थी कि एरर्स लीड टू फेलियर्स, एंड इफ देयर आर फेलियर्स द कस्टमर विल स्टॉप यूजिंग इट। सो वो प्रोडक्ट फेल हो जाती है, लोग उसको यूज करना छोड़ देते हैं। सॉफ्टवेयर को जो हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग मेथड्स, स्ट्रेटजी, टेस्ट क्राइटेरिया एंड टूल्स। ठीक है, अब तो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जो है वो इसके बगैर इनकम्प्लीट है अगर उसमें क्वालिटी कंट्रोल यूज नहीं हो रहे, उसमें टेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स यूज नहीं हो रहे, उसमें एक्सप्लिसिटली नहीं बताया गया कि क्या टेस्टिंग मेथड्स यूज होंगे, स्ट्रैटेजी क्या है, कौन से टूल्स और क्या क्राइटेरिया यूज होगा। सो दीज हैव बिकम अ मस्ट, अ मैंडेटरी कंपोनेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सॉफ्टवेयर। सो यू मस्ट हैव, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप करना चाह रहे हो, छोटे से छोटा हो या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर, कोई गेमिंग एप्लीकेशन है या कोई बहुत बड़ी डेटाबेस है, आपकी सॉफ्टवेयर टीम में 2-4 लोग हैं या 200 या 400 लोग हैं, आप किसी एक लोकेशन पे बैठ के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठकर डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से वो सॉफ्टवेयर बन रहा है, ये सॉफ्टवेयर में, उस सॉफ्टवेयर में क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग मेथड्स, स्ट्रेटजी, टेस्ट क्राइटेरिया और टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर सॉफ्टवेयर की एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जो है वो इम्पॉसिबल है। इंजीनियर्स क्या करते हैं? इंजीनियर्स एक्चुअली परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटीज टू परफॉर्म अ सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस। इंजीनियर्स का काम यह है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम यह है कि सारी टेस्टिंग एक्टिविटीज को वो रन करें, ठीक है, और सारी टेस्टिंग एक्टिविटीज को वो एक सॉफ्टवेयर पर रन करें। सॉफ्टवेयर पर रन करने से ओवरऑल आप टेस्टिंग को अचीव करेंगे, और हमें पता है कि टेस्टिंग अगर होगी तो उसमें से एरर्स निकलेंगे, एरर्स निकलेंगे तो एरर्स एड्रेस होंगे, एरर्स रिमूव होंगे और सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली क्वालिटी आती जाएगी। और इसके अलावा द लास्ट क्वालिटी चेकिंग पॉइंट फॉर सॉफ्टवेयर ऑन इट्स प्रोडक्शन लाइन। जब आप सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की बात करते हैं और आप किसी फेज में भी हैं, आप एनालिसिस फेज में हैं, आप डिजाइन फेज में हैं, आप कोड फेज में हैं, किसी फेज की हम बात करते हैं, लेट्स से डिजाइन फेज की बात करते हैं। सो डिजाइन फेज की प्रोडक्शन क्या है? डिजाइन फेज की प्रोडक्शन ये है कि आपने सॉफ्टवेयर का डिजाइन बना दिया, सॉफ्टवेयर का आपने लेट्स से कोई UML डायग्राम्स के थ्रू या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स के थ्रू या डेटा फ्लो डायग्राम्स के थ्रू आपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर दिया, कोई या प्रोटोटाइप आपने कर दिया। अब क्वालिटी कहां पे चेक होगी? इस डिजाइन में क्वालिटी कहां पे चेक होगी? क्वालिटी जो इस डिजाइन के फेज में जो चीज क्वालिटी चेक करेगी या कर सकती है वो आपका टेस्ट है, ठीक है। सो टेस्टिंग इज द चेक पॉइंट, इज द क्वालिटी चेक पॉइंट ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर ऑन इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। सो आप टेस्टिंग इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो डिजाइन फेज हो, चाहे वो एनालिसिस फेज हो, चाहे वो कोड फेज हो, ठीक है। आप टेस्टिंग इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज यू वांट टू चेक द क्वालिटी। चेक पॉइंट है, टेस्टिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ चेक पॉइंट टू इंश्योर क्वालिटी इन द सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसने हमने पहले भी बात की थी कि टेस्टिंग मस्ट बी हैविंग सम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जिसको हमने पहले भी देखा, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा। मजीद इसको आपको रिकॉल करने के लिए दोबारा बता दूं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स आपके ये होने चाहिए कि अनकवर एज मेनी एरर्स एज पॉसिबल। जितने ज्यादा आप एरर्स निकालेंगे उतना बेहतर है। क्यों बेहतर है? रिकॉल करें वो रिलेशनशिप जो मैं हमेशा बयान करता हूं कि द मोर एरर्स यू हैव the less quality is there in the software. The more errors you find out and you remove them,
ठीक है, एरर्स आपने कम कर दिए, क्वालिटी ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है। ठीक है, इसी तरह मेजर गोल्स में हमारे आते हैं अनकवर द एरर्स इन द सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग errors in requirements, errors in design, error in the coding or implementation phase, errors in system resources and system environment और error in hardware problems। तो मतलब आपकी टेस्टिंग का मेजर गोल ये है, पर्पस ये है कि किसी किस्म का डिफेक्ट है, किसी किस्म का एरर है और वो किसी भी फेज में है, एनालिसिस में है, डिजाइन में है, कोड में है, एनवायरनमेंट में है, उस हार्डवेयर में है, उस एरर को, उस डिफेक्ट को आप अनकवर करें, रिवील करें और रिमूव करें। सो ये हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो कौन करता है, हु डज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, जैसा आपका एक सॉफ्टवेयर कोडर्स करते हैं, सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है वो आपके एनालिस्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टर्स करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड लोग हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल में मुख्तलिफ किस्म के पीपल, मुख्तलिफ किस्म के ह्यूमंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर कोडर है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर है, जिसमें जो है वो क्वालिटी की टीम के कोई लोग हैं, जिसमें क्लाइंट है। ठीक है, सो मुख्तलिफ किस्म के लोग शामिल हो सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपका टेस्ट मैनेजर भी कर सकता है, टेस्ट इंजीनियर भी कर सकता है, जिसको हम टेस्टर भी कहते हैं। कोई इंडिपेंडेंट या थर्ड पार्टी आपने टेस्ट ग्रुप को हायर किया है वो भी कर सकता है, डेवलपमेंट इंजीनियर भी कर सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप के लोग हैं वो भी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड लोग हैं, ये डेडिकेटेड लोग हैं जो कि टेस्ट करते हैं। ये जितने भी हमने रोल्स पढ़े हैं, मैनेजर है, टेस्टर है, इंजीनियर है, ग्रुप है, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर है, ये सारे स्पेशलाइज्ड और डेडिकेटेड लोग हैं जो कि टेस्ट कर रहे हैं। अगर एक डिजाइनर है, डिजाइनर अपने डिजाइन को टेस्ट नहीं कर सकता। अगर एक कोडर है तो वो अपने कोड को टेस्ट नहीं कर सकता। अगर एक एनालिस्ट है तो वो अपनी स्पेसिफिकेशन को टेस्ट नहीं कर सकता। और रीजन इसकी ये है कि ये नेचुरल है कि आप अपनी चीज में एरर कम निकाल सकते हैं, आप क्योंकि आप अपनी निगाह से उसको देख रहे हैं, आप अपनी थिंकिंग से, अपने विजन से उस चीज को देख रहे हैं। सो आप उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट आप इतना अच्छे तरीके से नहीं कर सकते जितना अच्छे तरीके से कोई और बंदा करता है। ठीक है, जितना अच्छे तरीके से कोई और बंदा करता है। ये कई दफा ऐसे होता है, आपने देखा होगा डेली लाइफ में भी, कि आपने कोई असाइनमेंट करने हैं, ठीक है, आपने उसको इवन रीड आउट भी कर लें तो आपको वो ठीक लगती है, लेकिन जब वो चेक करने की जाती है, कोई इंस्ट्रक्टर चेक करे तो उसमें वो ढेर सारी मिस्टेक्स निकाल देता है और आपको बड़ा अजीब लगता है कि ये इतनी सिली मिस्टेक मैंने की है। सो ये क्यों? क्योंकि आपकी आंख ने उस एरर को, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं किया। जब किसी दूसरी आंख ने, किसी दूसरे पर्सन ने उसको इवैल्यूएट किया तो उसको वो एरर नजर आया। बिल्कुल यही चीज हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के साथ भी करते हैं। हम इसके लिए स्पेशलाइज्ड लोग, बाहर के लोग भी वो हो सकते हैं, आपकी अपनी टीम के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंटली आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक अगर कोडर है तो कोडर अपने टेस्ट को टेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि कोई इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप है, कोई थर्ड पार्टी आप लेकर आए हैं, कोई टेस्ट इंजीनियर है। ठीक है, सो वो इसको टेस्ट कर रहा है। टेस्ट मैनेजर से अगर शुरू करें, सो टेस्ट मैनेजर ओवरऑल क्या कर रहा है, मैनेज एंड कंट्रोल अ सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोजेक्ट। उसने पूरे के पूरे टेस्ट प्रोजेक्ट को टेस्ट किया हुआ है। जैसा हमने शुरू में बात की पिछले लेक्चर में कि टेस्ट आप प्लान करते हैं और प्लानिंग में आप ये सारी चीजें लिखते हैं कि टेस्ट कब शुरू होगा, क्या बजट है, क्या टाइम है, टेस्ट की क्या डिटेल्स होंगी, किस चीज को टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो आपका मैनेजर ओवरऑल टेस्ट प्रोजेक्ट को गवर्न कर रहा है, देख रहा है, और वो सुपरवाइज टेस्ट इंजीनियर्स को, ठीक है, जो एक्चुअली ह्यूमंस हैं, जो पर्सन्स हैं जो कि टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उनको सुपरवाइज कर रहा है। और डिफाइन एंड स्पेसिफाई अ टेस्ट प्लान। आपका टेस्ट मैनेजर क्या कर रहा है, वो एक्चुअली टेस्ट प्लान को उसने स्पेसिफाई किया है कि हाँ जी, इस पर्टिकुलर फेज के लिए ये टूल यूज करते हुए हम टेस्ट को करेंगे। ठीक है, सो स्पेसिफाई अ टेस्ट प्लान करता है।
सो आप देख सकते हैं कि टेस्ट मैनेजर डायरेक्टली कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि इसका काम ओवरऑल मैनेजमेंट और ओवरऑल कंट्रोलिंग से है। जिसके टेस्ट इंजीनियर या जिसको टेस्टर भी कहा जाता है, ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली टेस्टिंग कर रहा है। डिफाइन टेस्ट केसेस, ही राइट्स टेस्ट स्पेसिफिकेशन, ही रन टेस्ट्स। ठीक है, तो टेस्ट को डिफाइन करना, स्पेसिफिकेशन लिखना, टेस्ट को रन करना, ये एक्चुअली टेस्टर का काम है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर टेस्टर की ये जो आउटपुट है, ये अपने टेस्ट मैनेजर को बताता है कि हाँ जी, मैंने लेट्स से कोड रन किया और उसमें इस किस्म के एरर्स निकले, या मैंने डिज़ाइन को रन किया, डिज़ाइन को मैंने एक्सप्लोर किया कुछ टूल्स यूज़ करके, जब मैंने डिज़ाइन चेक किया तो इस किस्म के एरर्स आए हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी आपने हायर किया, उनको पे करते हैं और कहते हैं कि आई जी हमें हमारे सॉफ्टवेयर में हमारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके दें, और अगर इसमें कोई एरर्स हैं, कोई बग्स हैं, कोई, तो वो हमें काइंडली आप रिपोर्ट करें। इसके अलावा डेवलपमेंट इंजीनियर्स भी हैं। डेवलपमेंट इंजीनियर्स जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो भी टेस्टिंग करते हैं, लेकिन वो सिंपली क्या करें, वो अपने यूनिट्स की टेस्ट करें। जिस चीज़ को उन्होंने बनाया है वो सिर्फ उस चीज़ को चेक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं कि इस यूनिट को दूसरी यूनिट के साथ इंटीग्रेट करके चेक किया जाए। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप और इंजीनियर्स, ये भी थर्ड पार्टी लोग हैं। ये सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और ये बताते हैं कि कौन से टेस्टिंग स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को यूज़ किया जा सकता है ताकि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर टेस्टिंग के ये स्टैंडर्ड अप्लाई करके क्वालिटी को अचीव किया जाए। सो हमने देखा कि मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ पर्सनस हैं, और मुख्तलिफ पर्सनस के मुख्तलिफ ड्यूटीज़ हैं, और ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए, मुख्तलिफ रोल्स परफॉर्म करते हुए हर कोई अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कंट्रीब्यूट करता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्कोप की बात अगर करें, ठीक है, स्कोप में क्या चीज़ आती है, क्या देखें, अगर हम, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि हम एक कोड को टेस्ट करने की बात करते हैं, और कोड में 10,000 लाइंस ऑफ कोड हैं। ठीक है, अब 10,000 लाइंस ऑफ कोड को लाइन बाय लाइन टेस्ट करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लग जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या किया जाए, कोड आपने टेस्ट भी करना है, ठीक है, लेकिन आप जो है वो लाइन बाय लाइन टेस्टिंग जो है वो फीजिबल नहीं है या मुनासिब नहीं है। सो इस केस में आप बताते हैं कि एक्चुअली क्या चीज़ें आपने टेस्ट करनी है, कितनी देर में करनी है, कितने रिसोर्सेज लगा के करनी है। टेस्टिंग स्कोप में ये भी आता है कि आप बाहर से किन लोगों को बुला रहे हैं। ठीक है, क्या आप बाहर से लोगों को बुला भी रहे हैं या नहीं, ठीक है, या कोई आपकी टीम में से कोई टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का स्कोप वेरी कर सकता है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। बाज़ सॉफ्टवेयर जो छोटे हैं उनका टेस्टिंग स्कोप भी छोटा होगा, बाज़ सॉफ्टवेयर जो कि बहुत बड़े और ह्यूज प्रोजेक्ट्स हैं उनका टेस्टिंग स्कोप भी लार्जर है। एनीवे, जो चंद चीज़ें किसी भी सॉफ्टवेयर के स्कोप में आ सकती हैं वो हैं कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग मैनेजमेंट जो है वो आप बताते हैं, और अगेन मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप ने कब टेस्टिंग स्टार्ट करनी है, कितने रिसोर्सेज आपको चाहिए, कितना आपके पास बजट है, कितना आपके पास मैक्सिमम टाइम है। सो टेस्टिंग मैनेजमेंट। इस तरह कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम मैनेजमेंट है, कौन से टूल्स आप यूज़ करेंगे, ठीक है, कौन से मेथड्स आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जिस तरह हम एक अगर हम CU ऑनलाइन आपका जो सिस्टम है या आपका LMS सिस्टम है जिसमें आप ऑनलाइन अकाउंट स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, अपने मार्क्स देख सकते हैं, उसके थ्रू एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। ठीक है, अब अगर हमने इसको टेस्ट करना है, ठीक है, और इसमें हमने सिक्योरिटी को चेक करना है कि भाई ये अगर बाहर से कोई अटैक्स होते हैं तो उसके लिए ये रेजिलिएंट है या नहीं। सो हमारे पास स्पेशल डेडिकेटेड टूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिकली पेंट्रेशन टेस्टिंग टूल्स हैं। पेंट्रेशन टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है ताकि इसको चेक किया जाए कि ये अटैक्स अगर आए तो ये रोका तो नहीं, ये अटैक्स को रोकेगी, ये आपका LMS सर्वर अटैक्स को रोकेगा या जो है वो क्रैश हो जाएगा। सो इस केस में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने, वर्चुअल कॉम्पसेट्स ने स्पेशल डेडिकेटेड टूल्स यूज़ करते हुए अपने
सॉफ्टवेयर को, अपने LMS सिस्टम को चेक किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है और ये वेरीफाइड है कि इट इज़ सिक्योर इनफ एंड इट कैन स्टॉप एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल अटैक्स दैट कैन कम टूवर्ड्स दी सर्वर। टेस्टिंग मेथड्स में वाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, यूनिट टेस्टिंग करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, क्या चीज़ टेस्टिंग से बाहर है, क्या चीज़ आप टेस्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ह्यूमंस भी शामिल हैं, तो क्या आप ह्यूमंस को भी चेक करेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये जो चीज़ें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उनको आपने चेक करना है। जो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, सो आप अपने स्कोप में ये चीज़ें बता देते हैं। इस पर्टिकुलर फिगर में हमने वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखी जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में शामिल हो सकती हैं। इसके बाद हमने पहले भी बात की थी, मजीद देख लें कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ की सूरत में चलता है, ठीक है। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप उठ के चले गए और आपने कोई भी चीज़ टेस्ट करना शुरू कर दी, बल्कि आप प्लान से शुरू करते हैं। यू एक्चुअली फर्स्ट डिज़ाइन अ टेस्ट प्लान, ठीक है। आप प्लान करते हैं, फिर जो है उसकी डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन होती है, फिर टेस्ट को आप एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं और फिर आप एग्जिट करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी बताई है कि डिफाइन अ सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान बाय स्पेसिफाइंग अ टेस्ट स्केड्यूल फॉर अ टेस्ट प्रोसेस एंड इट्स एक्टिविटीज़, असाइनमेंट्स, टेस्ट रिक्वायरमेंट्स, आइटम्स, टेस्ट स्ट्रैटेजी, सपोर्टिंग टूल्स, ये सारी चीज़ें आप टेस्ट प्लान में आइडेंटिफाई करते हैं। वही बात, कब टेस्ट शुरू करना है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है, टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आप प्लान में डिफाइन करते हैं। डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन में आपका क्या करते हैं, यू कंडक्ट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बेस्ड वेल डिफाइंड टेस्ट जनरेशन मेथड्स, ठीक है। आप टेस्ट के जो एग्जैक्टली मेथड्स जो आप यूज़ करने वाले हैं उनको आप स्पेसिफाई करते हैं, उनको आप बताते हैं, और आप टेस्ट केसेस स्पेसिफाई करते हैं, केस स्टडीज, ठीक है, जो कि टारगेटेड टेस्ट कवरेज को अचीव करती हैं। टारगेटेड टेस्ट कवरेज का मतलब क्या है कि आपके सॉफ्टवेयर का कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट है, उसको चेक करने के लिए जो भी आपने डिज़ाइन या स्ट्रैटेजी या केस बनाया हुआ है वो एड्रेस वहाँ पे होता है। कोड को टेस्ट करना इज डिफरेंट देन डिज़ाइन को टेस्ट करना। टेस्टिंग डिज़ाइन इज टोटली डिफरेंट देन टेस्टिंग दी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और टेस्टिंग अ प्रोटोटाइप, ठीक है। सो आप वेल टारगेटेड टेस्ट केसेस बनाते हैं और आप अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट को करते हैं। देन यू एक्चुअली टेस्ट सेटअप, जिसमें आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में जाकर उस सॉफ्टवेयर पर वो टेस्ट, वो टूल्स अप्लाई करते हैं और टेस्ट आप कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सो लास्टली टेस्ट ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन, यू एक्चुअली रन द टेस्ट। सारी चीज़ें आपने प्लान की, फिर डिज़ाइन की, फिर स्पेसिफाई की, अब आप एक्चुअली टेस्ट को रन कर रहे हैं। टेस्ट को रन करना मैनुअली भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी हो सकता है। जिस पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल की मैंने बात की है अभी, ठीक है, ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल है। आपको इसको सिंपली आप अपने सॉफ्टवेयर का बता देते हैं और ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर को खुद से टेस्ट करते हैं। सो ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग है, जबकि वास्ट टेस्टिंग वो मैनुअल है, आपको खुद चीज़ें लोड करनी पड़ती हैं, खुद स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। सो चाहे मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, यू एक्चुअली टेस्ट ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन, आपने टेस्ट एग्जीक्यूट कर लिया। एग्जीक्यूशन के बाद जो आपके एरर्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनको आप डॉक्यूमेंट की सूरत में, एक रिपोर्ट की सूरत में लिखते हैं और जो भी रेलिवेंट लोग हैं उन तक आप पहुंचाते हैं, ताकि उन एरर्स को रिमूव किया जा सके और आपके सॉफ्टवेयर में क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। अच्छा जी, इसके बाद जैसा हमने देखा कि आपने टेस्ट एग्जीक्यूट कर लिया, लास्ट लाइन है टेस्ट ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन। इसके बाद आपका रिजल्ट एनालिसिस और रिपोर्टिंग है। मतलब टेस्ट एग्जीक्यूट करने पर बात खत्म नहीं हो जाती। टेस्ट रन होने के बाद कुछ एरर्स आए हैं, टेस्ट रन होने के बाद कुछ बग्स आइडेंटिफाई हुए हैं, उन बग्स को, उन सॉफ्टवेयर के एरर्स को रिपोर्ट करना, उनका रिजल्ट बनाना, रिजल्ट को एनालाइज करना, ये एनालिसिस और रिपोर्टिंग के फेज में होता है। इसके बाद प्रॉब्लम रिपोर्टिंग में आप क्या करते हैं, यू रिपोर्ट प्रोग्राम एरर्स यूजिंग अ सिस्टमैटिक सोल्यूशन। आप सोल्यूशन बताते हैं कि भाई इसको क्या तरीका यूज किया जाए कि ये एरर्स जो है वो ठीक हों।
सिस्टमैटिक सोल्यूशन से ये मुराद है कि किन पर्सन्स को शामिल किया जाए, किस फेज में चेंजेस की जाएं ताकि फलाना एरर जो है वो एड्रेस हो या रिमूव हो. एंड टेस्ट मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट which actually deals with managed software testing activities, control testing schedule, measure testing complexity and cost. So management में ये सारी चीज़ें कंट्रोल से रिलेटेड हैं. और इसी तरह ऑटोमेशन, टेस्ट ऑटोमेशन की हमने बात की कि डिफाइन एंड डेवलप सॉफ्टवेयर टेस्ट टूल्स. कौन से टूल्स आप यूज़ करेंगे, ठीक है. अगर 1000 लाइन्स ऑफ कोड हैं तो उनको आप मैनुअली, या 10,000 लाइन्स ऑफ कोड है तो आप उसको मैनुअली नेकेड आई से चेक नहीं कर सकते. सो इस केस में आप कोई टूल यूज़ करेंगे, वो टूल जो है वो उस 1000 या 10,000 लाइन्स ऑफ कोड को ऑटोमेटिकली टेस्ट कर लेगा और अगर उसमें कोई एरर्स हैं, ठीक है, तो वो आपको बता देगा. इसी तरह यू राइट सॉफ्टवेयर टेस्ट स्क्रिप्ट्स एंड फैसिलिटी, ठीक है. टेस्ट लॉन्च करने से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं उनको भी आप राइट अप कर लेते हैं. Test configuration management, which actually deals in the management and maintenance of different versions of software test suites, test environment and tools, and documents for various product versions. ठीक है. So configuration management में या test configuration management में आपने different software versions के different test suites जो हैं उनको आपने identify किया. आपने ये बताया कि सॉफ्टवेयर के इस वर्जन के लिए टेस्ट का ये वर्जन मैंने यूज़ किया, ठीक है, और इन चीज़ों को हमने टेस्ट किया. अब सॉफ्टवेयर का वर्जन नेक्स्ट आ गया है, लेट्स से पहले सॉफ्टवेयर का वर्जन 2.1 था, अब 2.2 आ गया है या 2.4 आ गया. अब इस केस में जो है एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गई है, अब टूल्स में भी डिफरेंट यूज़ हो, ठीक है. सो हर सॉफ्टवेयर के वर्जन के लिए डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट एनवायरनमेंट भी हो सकती है और डिफरेंट टूल्स भी हो सकते हैं. तो अगर ये सेम टूल्स यूज हुए हैं या डिफरेंट टूल्स यूज हैं, you actually document the various product versions in the test configuration management. वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, सो हमने शुरू में बात की कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन आपकी एक्चुअली क्वालिटी को इंश्योर कर रही हैं, या और क्वालिटी जो है वो आप एक्चुअली सॉफ्टवेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. सो यू आर एक्चुअली वैलिडेटिंग एंड वेरीफाइंग द सॉफ्टवेयर. Validating and verifying the software means that you are actually testing the software, and testing the software means that you are actually ensuring the quality in the software. So verification और validation को हमने डिटेल में बात की, ठीक है. और verification क्या है? Implements a specific function. Software correctly implements a specific function. और validation क्या है? The software that has been built is traceable to customer requirement. क्या और वही अगेन वही बात कि क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट, ठीक है, पूरी हो रही है. वैलिडेशन और वेरिफिकेशन क्या है? क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट जिस तरीके से पूरी होनी चाहिए थी उस तरीके से पूरी हो रही है, ठीक तरीके से पूरी हो रही है. सो इसको वैलिडेशन और वेरिफिकेशन कहते हैं. मोहिम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने वैलिडेशन और वेरिफिकेशन को ऐसे डिफाइन किया है वैलिडेशन के बारे में, जिसको हम पहले भी देखते आए हैं और हमने अर्लियर लेक्चर्स में भी देखा. वो ये कहता है कि वैलिडेशन क्या है? आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, और वेरिफिकेशन आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट. क्या हम ठीक चीज़ बना रहे हैं और क्या हम ठीक चीज़ को ठीक तरीके से बना रहे हैं. क्या हम ठीक चीज़ बना रहे हैं? वैलिडेशन. क्या हम ठीक चीज़ को ठीक तरीके से बना रहे हैं? वेरिफिकेशन. सो ये V&V वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की जो डेफिनेशन है, ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की एक एक्टिविटी है. इस वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज भी हैं, क्वालिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स भी हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी है, डिफरेंट टेस्टिंग टाइप्स भी इन्वॉल्व होती हैं, फिजिबिलिटी स्टडी भी है, टेस्टिंग टूल्स यूज होते हैं. सो आप इस वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के थ्रू ओवरऑल सॉफ्टवेयर को जो है वो चेक कर रहे हैं फॉर इट्स क्वालिटी. सॉफ्टवेयर क्वालिटी की मजीद क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. सबसे पहले फंक्शनैलिटी, जिसको हम एक्सटीरियर क्वालिटी कहते हैं. अगर तो वो फंक्शनैलिटी अचीव हो रही है, दिस मीन्स दैट दी
सॉफ्टवेयर हैज़ गॉट क्वालिटी इन इट। फंक्शनैलिटी से क्या मुराद है? वही यूज़र की रिक्वायरमेंट, यूज़र की स्पेसिफिकेशन। अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन मीट हो रही है, दिस मीन्स एक्सटीरियर क्वालिटी उसमें पाई जाती है, जिसमें हम एक्चुअली करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटेग्रिटी, ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। करेक्टनेस क्या है? यही है कि अगर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट में ये था कि जो यूज़र है वो अपनी प्रोफाइल बिल्डअप कर सके, अपनी सीवी अपलोड कर सके, अपना एक प्रोफाइल इमेज सेव कर सके, अगर तो ये करेक्टली चीज़ें हो रही हैं, सो ये एक्सटीरियर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, करेक्टनेस को शो कर रहा है, और इसका मेनली ताल्लुक एंड यूज़र से है। जबकि इंजीनियरिंग वो उसकी इंटीरियर क्वालिटी है, इंटरनली सॉफ्टवेयर कैसे बना है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसमें टेस्टेबिलिटी क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कितनी अच्छी बनी है, सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सो ऑल दीज आइटम्स आर इंक्लूडेड और दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इंटीरियर क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। एंड adaptability, these are future qualities. The adaptability and the characteristics mentioned in adaptability, that is flexibility, reusability and maintainability, this may not be direct the quality factors, but if they are there, they can help in the future to have a quality software. So mainly आप focus करते हैं functionality, exterior quality पर और interior quality पर, और एक अच्छे सॉफ्टवेयर में फ्यूचर क्वालिटीज भी होनी चाहिए, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी, जिसको आप पोर्टेबिलिटी भी कहें, दूसरी मशीन पर अगर ये इंस्टॉल किया जाए, दूसरे वर्जन पर अगर इंस्टॉल किया जाए, ठीक है। तो अडॉप्टेबिलिटी अगर है तो उसका मतलब ये है कि उस सॉफ्टवेयर में फ्यूचर क्वालिटी भी पाई जाती है। आइए जी अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स की। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स तो हमने देख लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल नंबर 1 ये कहता है कि कंप्लीट टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। जिस तरह मैंने बात की कि अगर आपके पास 10,000 लाइंस ऑफ कोड है, सो हर लाइन ऑफ कोड को एग्जॉस्टिवली टेस्ट करना ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। फिर आप क्या करते हैं कि 10,000 लाइंस ऑफ कोड के बजाय आप मेनली जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कोड हैं आप उसको टेस्ट कर लेते हैं, या आप कोई टूल लाके चेक कर लेते हैं। सो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की सारी चीज़ों को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो सिमिलर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उनको आप छोड़ देते हैं। लेट्स से अगर एक आपने डेटाबेस का एक टेबल बनाया है और उसमें एक फील्ड है नेम, ठीक है, और फिर इस नेम की फील्ड को आप रेप्लिकेट कर रहे हैं दूसरे टेबल्स में, या एज अ फॉरेन की आप दूसरे टेबल्स में यूज़ कर रहे हैं। सो आप अगर नेम को एक जगह पे आपने टेस्ट कर लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली और वो आपकी रिक्वायरमेंट के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी हैं, सो नॉट नेसेसरली कि इस नेम को, सेम चीज़ को आप दूसरी जगह पे दूसरे टेबल में दोबारा चेक करें और तीसरी जगह पे तीसरे टेबल में दोबारा चेक करें। एक दफ़ा टेस्ट कर लेना एक जगह पे काफ़ी है। दूसरा यह है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ नॉट सिंपल, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ढेर सारे मसले मसाइल आते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में आप जो है वो बाहर के लोग बुलाएंगे, टेस्टर्स आएंगे। बाहर के लोग तो आपके सॉफ्टवेयर को तब टेस्ट कर सकेंगे जबकि वो आपके पहले सॉफ्टवेयर को समझें तो सही कि ये है क्या। सो पूरे का पूरा उसको समझेंगे, उसके बाद उसको टेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स उनको समझ में आएंगी, उसके बाद ही उसको टेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्वालिटी टेस्टिंग नीड्स एडुकेट टेस्ट सेट एंड एफिशिएंट टेस्टिंग मेथड्स। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका टेस्ट ऐसा हो जो कि हर किस्म के एरर्स को निकाल दे, क्वालिटी टेस्ट हो, सो फिर आप एफिशिएंट मेथड्स यूज़ करते हैं। आप एडुकेट टेस्ट सेट, टेस्ट के सिनेरियोज, केस स्टडीज, टेस्ट केसेस, एनवायरनमेंट अकॉर्डिंगली आप सेट करते हैं, जो कि थोड़ा सा मतलब आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स या डिमांडिंग है। और तीसरी रीज़न ये भी हो सकती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के सिंपल ना होने की वजह ये भी हो सकती है कि अ वेरी टाइट स्केड्यूल एंड लैक ऑफ टेस्ट टूल। कुछ टेस्ट टूल्स तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ढेर सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए टूल्स मौजूद नहीं है, वो आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, और मैनुअल करने के लिए टाइम चाहिए होता है, बाज़ अगर टाइम आपके पास होता नहीं है। सो ये कुछ रीजंस हैं, उन रीजंस की वजह से हम कहते हैं कि टेस्टिंग जो है वो इतना आसान काम, इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। हम इसकी इम्पोर्टेंस से
इनकार नहीं कर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग इतना आसान काम नहीं है इन वजूहात की वजह से। टेस्टिंग जो है वो प्रिंसिपल नंबर 3 ये कहता है कि टेस्टिंग इज रिस्क बेस्ड। ठीक है, रिस्क बेस्ड का मतलब ये हो सकता है कि आप टेस्टिंग पर कोई बजट, एफर्ट, टाइम, रिसोर्सेज, बाहर से लोग बुला रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है टेस्टिंग में कोई ऐसा एरर निकल आए जिसकी वजह से आपका सारे का सारा सॉफ्टवेयर जो है वो जितना काम आपने किया वो सारे का सारा जो है वो क्रैश कर जाए, या सारे का सारा जो है वो पता चले कि इसमें इतना वाइटल एरर है, ठीक है, कि आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक दूसरे हिसाब से आप रिस्क बेस इस सेंस में कह सकते हैं कि टेस्टिंग के लिए आप बजट एलोकेट कर रहे हैं, बजट जो है वो आपके मेन सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट से ही निकला हुआ है, उसकी वजह से सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, सो रिस्क बेस है। प्रिंसिपल नंबर 4 ये कहता है कि टेस्टिंग मस्ट बी प्लान्ड। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के चले जाएं और टेस्टिंग करें। सो द टेस्टिंग प्रोसेस और द टेस्टिंग एक्टिविटी शुड बी प्लान्ड, शुड बी वेल प्लान्ड एंड प्लान्ड अहेड। पहले से इसको देखें। और टेस्टिंग रिक्वायर्स इंडिपेंडेंस। This means that you should be hiring third-party people. This means that you should be hiring independent reviews, independent tools in order to do testing. And principle number 6 says that if you want to do quality software testing, so it depends on the good understanding of software product. It depends on the cost-effective test methodology. It depends on the good engineers. So जितनी अच्छी आपकी सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग होगी, इतने अच्छे तरीके से आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं। जितनी आप उस पर कॉस्ट इफेक्टिव मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे, उतनी ही अच्छे तरीके से आप क्वालिटी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हैं। जितने अच्छे आपके पास सॉफ्टवेयर टेस्टर्स या इंजीनियर्स आएंगे जिनमें क्रिएटिविटी है, जिनका टेस्टिंग में बैकग्राउंड है, उतना ही अच्छा आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकेंगे। अगर आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को लेकर आए हैं और उसका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक्सपीरियंस बहुत कम है, ठीक है, वो इतने अच्छे तरीके से आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं कर सकता उस शख्स के मुकाबले में या उस सॉफ्टवेयर टेस्टर के मुकाबले में जिसका कई सालों का जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस भी बड़ा काउंट करता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मिथ्स क्या है? मतलब एक्चुअली देखा जाए तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। नंबर 1, वी कैन टेस्ट अ प्रोग्राम कंप्लीटली। इन अदर वर्ड, वी टेस्ट अ प्रोग्राम एग्जॉस्टिवली। आप जो है वो कोशिश आप ये करते हैं कि प्रोग्राम को कंप्लीटली टेस्ट करें, या दूसरे अल्फाज में आप एग्जॉस्टिवली करें। ठीक है, जितने भी उस प्रोग्राम के कंपोनेंट्स हैं, जितने भी उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं, आप वो सारी की सारी 1 by 1 आप वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा मिथ ये कहता है वी कैन फाइंड ऑल प्रोग्राम एरर्स एज लॉन्ग एज टेस्ट इंजीनियर्स डू अ गुड जॉब। आप टेस्ट इंजीनियर्स पर सिर्फ टेस्टिंग को ना डालें, ठीक है, कि टेस्ट इंजीनियर ही एरर निकालेगा, बल्कि एरर निकालना जो है वो जो भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है वो उसका भी काम है। ठीक है, अगर एक कोडर ये समझकर कोडिंग कर रहा है कि मेरे कोड में अगर एरर हुए तो वो जो टेस्ट इंजीनियर है वो निकालेगा, मेरा काम नहीं है ये, ठीक है, तो वो ये अप्रोच गलत है। बल्कि उस कोडर को चाहिए कि वो अपने हिसाब से टेस्टिंग करे, अपने एंड पर वो एरर्स को एज मच मिनिमाइज करे जितना पॉसिबल हो। फिर ये कि वी कैन टेस्ट अ प्रोग्राम बाय ट्राइंग ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड स्टेट्स ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि अगर आप कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो आप टेस्ट केसेस बनाते हैं, आप ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। ठीक है, अगर एक फाइल आपने अपलोड करनी है जिसकी मैक्सिमम साइज 5 MB होना चाहिए, तो आप ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या, आप 1 MB की भी फाइल अपलोड करके देखते हैं, 4 MB की भी अपलोड करके देखते हैं, 5 MB की भी अपलोड करके देखते हैं, 5 MB से स्लाइटली जिसका साइज बिगर हो वो भी करके देखते हैं। सो ऑल पॉसिबल इनपुट्स आप देखते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप नेम इनपुट कर रहे हैं तो नेम में लेट्स से पहला कैरेक्टर
कैपिटल होना चाहिए और बाकी स्मॉल होने चाहिए, आप इस कम्बिनेशन को इन्वर्स करके देखते हैं कि पहले स्मॉल करके बाकी सारे कैपिटल में कर दिए, ठीक है। ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस आप करके देखते हैं। अ गुड टेस्ट सूट मस्ट इंक्लूड अ ग्रेट नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। टेस्ट की जब आप बात करते हैं तो डिफरेंट टेस्ट सिनेरियोज उसमें होने चाहिए, डिफरेंट टेस्ट केसेस उसमें होने चाहिए। डिफरेंट टेस्ट केसेस होंगे तो ये एक क्वालिटी का टेस्ट होगा। गुड टेस्ट केसेस ऑलवेज आर कॉम्प्लिकेटेड वंस, मतलब आपका टेस्ट इतना सिंपल नहीं होना चाहिए। एक अच्छा टेस्ट ये है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो हर एंगल से उस सॉफ्टवेयर को चेक करें। सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑटोमेशन कैन रिप्लेस टेस्ट इंजीनियर्स टू परफॉर्म गुड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अगर तो टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल हैं, सो वी बिलीव दैट दीज टेस्टिंग टूल्स परफॉर्म बेटर देन ह्यूमंस। सो आप उन टेस्टिंग टूल्स को यूज करते हुए अच्छी टेस्टिंग कर सकते हैं। और लास्टली, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज सिंपल एंड इजी, एनीवन कैन डू इट, नो ट्रेनिंग इज नीडेड। ठीक है, ये एक मिथ बनी हुई है, ठीक है, ये एक मिथ बनी हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नॉट इजी एंड नॉट सिंपल। ये हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, प्रिंसिपल नंबर 2, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नॉट सिंपल। लेकिन एक आम चीज जो लोगों के जहन में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जहन में बनी हुई है, वो ये है कि टेस्टिंग सिंपल है, कोई भी किसी भी वक्त कर सकता है, ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये मिथ गलत बनी हुई है, बल्कि सॉफ्टवेयर इज टेस्टिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, इट रिक्वायर्स स्पेशल और डेडिकेटेड पर्सन्स, इट रिक्वायर्स professional testers, and yes, training is definitely needed in order to do the testing. So ये कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मिथ्स थे टेस्टिंग के हवाले से, जो लोगों के या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जहन में जो चीज़ें बनी हुई हैं, इनको हमने वन बाय वन एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। सो ड्यू टू दी टेस्टिंग टाइम लिमिट इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव टोटल कॉन्फिडेंस। अगर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में टोटल टाइम लगा है, फॉर एग्जांपल 60 डेज, ठीक है, तो आप अनदर 60 डेज उसकी टेस्टिंग पर नहीं लगा सकते, बल्कि आपको टेस्टिंग के लिए हार्डली 4 या 5 दिन मिलेंगे। सो उन 4 या 5 दिन में आपने 60 डेज का काम टेस्ट करना है, ठीक है। सो टोटल कॉन्फिडेंस अचीव करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम की लिमिट आ गई। सो आप 100% कॉन्फिडेंस अचीव नहीं कर सकते कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो 100% बग फ्री है। आप 99.9% तो कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप 100% टाइम लिमिट की वजह से नहीं कह सकते। हाँ, आप उस वक्त 100% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं जबकि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए आपको ढेर सारा टाइम मिले, अनलिमिटेड टाइम मिले। लेकिन चूंकि अनलिमिटेड टाइम नहीं मिल सकता, ठीक है, सो आप 100% कॉन्फिडेंस अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ये कि वी कैन नेवर बी श्योर दी स्पेसिफिकेशंस आर 100% करेक्ट, ठीक है। सॉफ्टवेयर में अगेन जितना अगर हम उसको 100% कॉन्फिडेंस हमने नहीं है, तो हम 100% ये भी नहीं कह सकते कि 100% सॉफ्टवेयर करेक्ट है। अगेन 99.9% तक आप कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें कोई एरर, कोई चीज रह गई हो। आप इमेजिन करें जब विंडोज का अर्लियर वर्जन विंडोज 95 और विंडोज 98 जब लॉन्च हुए, सो अब जाहिर है ढेर सारे प्रोग्रामर्स कई साल तक उस पर प्रैक्टिस करते रहे, उसके बाद ही विंडोज 98 या विंडोज 95 डेवलप हुई थी। उन्होंने विंडोज 95 और 98 को थॉरली टेस्ट भी किया था, लेकिन जब एक्चुअली वो विंडोज लॉन्च हुई, कस्टमर्स ने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसमें ढेर सारे मसले मसाइल सामने आए और ढेर सारे चीज़ें, डिफेक्ट्स, बग्स और एरर उसमें शामिल आए। सो 100% आपने अपने एंड, विंडोज ने, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एंड से उसको 100% उसको कंप्लीटली टेस्ट किया होगा, लेकिन स्टिल उसमें एरर्स की गुंजाइश रह जाती है। सो दिस इज द रीजन वी कैन नॉट से दैट 100% करेक्ट है या 100% हम कॉन्फिडेंट है कि ये चीज बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अच्छा, इसके अलावा वी कैन नेवर बी सर्टेन दैट अ टेस्टिंग सिस्टम और टूल इज करेक्ट। आप टेस्टिंग के लिए आपने कोई टेस्टिंग टूल इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए यूज किया, क्या ये टूल
इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए ही बना है, क्या ये टूल इसके लिए अप्रोप्रिएट है, ये चीज हमें नहीं पता। ये तो एक जेनेरिक सा टूल हो सकता है जो कि इसको टेस्ट करेगा। सो ठीक है, इस टूल का इस सॉफ्टवेयर पर इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं, हम 100% श्योर नहीं हो सकते। हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट टूल है वो अप्लाई किया जाए, ठीक है, लेकिन अगेन हम 100% श्योर नहीं हो सकते। अच्छा, नो टेस्टिंग टूल्स कैन कॉपी विद एवरी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, मतलब कोई भी ऐसा टेस्टिंग टूल नहीं है जो कि स्पेसिफिकली हर किस्म के सॉफ्टवेयर को जो है वो टेस्ट कर सके। मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, मुख्तलिफ उनकी रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो डिज़ाइन हुए हैं, उनके कोडर्स ने कोडिंग मुख्तलिफ तरीके। सो कोई एक टूल एग्जैक्टली जो है वो सबको फुलफिल नहीं कर सकता। एक बात और, टेस्टर और इंजीनियर्स नेवर बी श्योर दैट दे कंप्लीटली अंडरस्टैंड अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। आप तो थर्ड पार्टी पर्सन हायर करें, वो टेस्टिंग करेगा आपके लिए। अब वो टेस्ट इंजीनियर, जिसने हमने पहले भी बात की कि टेस्ट इंजीनियर को आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए पहले उसको समझना जरूरी है, समझेगा तो उसको टेस्ट कर सकेगा। अगर वो उसने सॉफ्टवेयर को समझा ही नहीं है तो उसमें वो टेस्टिंग नहीं कर पाएगा। सो 100% समझ जाना ये उस सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए या उस सॉफ्टवेयर टेस्टर इंजीनियर के लिए जो है ये पॉसिबल नहीं है, या वो 100% श्योर नहीं हो सकता कि हाँ जी मैं सॉफ्टवेयर को कंप्लीट समझ गया हूं और मैं अब इसको बड़े अच्छे तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं कमी जरूर रह जाती है। सेकंड लास्ट ये कि वी नेवर हैव एनफ रिसोर्सेज टू परफॉर्म सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अगेन हमने शुरू में बात की कि हमारे पास टाइम की लिमिट है, हमारे पास बजट की लिमिट है, हमारे पास रिसोर्सेज की लिमिट है। सो इन लिमिटेशंस की वजह से आप परफेक्ट टेस्टिंग करना जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और लास्ट पॉइंट, वी कैन नेवर बी सर्टेन दैट वी अचीव 100% एडिक्वेट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बेस्ड ऑन ऑल दीज पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को 100%, उस सॉफ्टवेयर टेस्टर को 100% सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कोई परफेक्ट टूल हमें नहीं मिला। इन चीज़ों की वजह से, इन रीजंस की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सॉफ्टवेयर 100% एडिक्वेट टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो मतलब उसमें 99.9% की आप बात कर सकते हैं कि लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी ज़रूर रह जाती है या रह सकती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस, इस पर्टिकुलर फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग के डिफरेंट फेजेस हैं और उसके अगेंस्ट हमारे पास वैलिडेशन और वेरिफिकेशन टारगेट्स हैं। यूनिट टेस्टिंग आपकी क्या करती है, कोड और इम्प्लीमेंटेशन को टेस्ट करती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपकी ओवरऑल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को टेस्ट करती है। वैलिडेशन टेस्टिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करती है। और सिस्टम टेस्ट आपका ओवरऑल सिस्टम जो इंजीनियर हुआ है उसको टेस्ट करती है। So this was the example of software testing process. Let us talk something about the more details of unit testing, integration testing and system testing. Unit testing जिसको हम component level test भी कहते हैं, हमने previous lecture में briefly इसको देखा था। आइए थोड़ा सा मजीद डिटेल में इसको देखते हैं। So unit testing में individual components को टेस्ट किया जाता है independently। उनको टेस्ट करने का मकसद ये होता है कि हम उसमें क्वालिटी इंश्योर करना चाह रहे हैं। यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव ये है या फोकस ये है कि वी वांट टू अनकवर एरर्स इन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। डिज़ाइन फेज के अगर एरर्स हैं उसको स्पेसिफाई या उसको ढूंढा जाए, या इम्प्लीमेंटेशन फेजेस के कोई एरर्स हैं उनको ढूंढा जाए। सो द फोकस इज टू अनकवर एरर्स इन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग डाटा स्ट्रक्चर इन अ कंपोनेंट। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि इंटीजर रॉन्गली स्पेसिफाइड है, इंटीजर की लेंथ रॉन्गली स्पेसिफाइड है, इंटीजर की टाइप रॉन्गली स्पेसिफाइड है। ये डाटा स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जिसको आप टेस्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग लॉजिक को आप चेक करते हैं, प्रोग्राम स्ट्रक्चर को आप चेक करते हैं, फंक्शंस एंड ऑपरेशंस को आप चेक करते हैं। ठीक है, सो यूनिट टेस्टिंग में हर इंडिविजुअल कंपोनेंट को आप इंडिपेंडेंटली चेक करते हैं और पर्पस ये होता है कि उसमें जितने एरर्स पॉसिबल हों उन एरर्स को रिमूव किया जा सके। अब यहां पे अगर आप देखें तो दो डायग्राम्स हैं,
एक आपकी वाइट बॉक्स टेस्टिंग को शो कर रही है और दूसरी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को शो कर रही है। ठीक है, जैसा हमें पता है कि यूनिट टेस्टिंग में, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, अगर आप यूनिट टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंपली ये देखते हैं कि इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट आई है या नहीं। जबकि किसी यूनिट की आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप उसको इनपुट देखते हैं, इंटरनल लॉजिक देखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स देखते हैं, फ्लो देखते हैं, स्टोरेज देखते हैं, रिकॉल देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं और फिर आप उसकी आउटपुट देखते हैं। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी आप अप्लाई करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी आप हर यूनिट पर इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली अप्लाई करते हैं ताकि आप एज मच एरर्स एज पॉसिबल आप हाईलाइट कर सकें, आप अनकवर कर सकें। इसके बाद है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या है, आपका एक कंपोनेंट है, एक यूनिट था, दूसरा कंपोनेंट है और दूसरा यूनिट है, इनको इंटीग्रेट किया आपने, फिर आप इनपुट देते हैं और अकॉर्डिंगली आप आउटपुट चेक करते हैं। तो इनपुट इंटीग्रेट करने के बाद आप इन दोनों यूनिट्स को, इन दोनों कंपोनेंट्स को आप चेक कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन टेस्ट, अ ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट कंपोनेंट्स आर टेस्टेड टुगेदर। ठीक है, a group of dependent components or dependent units are tested together to ensure their quality, the quality of these particular units. So आपने इन components को individually तो यूनिट टेस्टिंग में चेक कर लिया, अब आप इन कंपोनेंट्स और इन यूनिट्स को इंटीग्रेट करते हुए, कंबाइंड करते हुए आप टेस्टिंग करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का फोकस ये है कि आप अनकवर करें एरर्स को, डिज़ाइन फेज में है या इंटीग्रेटेड फंक्शंस में है या इंटरफेस में है या रिसोर्स इंटीग्रेशन में है। सो पर्पस आपका ये होता है कि इनमें से किसी भी एरिया में अगर कोई एरर्स हैं तो उनको अनकवर किया जाए। इंटीग्रेशन टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है, ये डेवलपर भी कर सकते हैं और टेस्ट इंजीनियर्स डेडिकेटेड जो लोग हैं वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आप फंक्शन या वैलिडेशन टेस्टिंग करते हैं। वैलिडेशन टेस्टिंग में आपका पर्पस ये है कि जिन कंपोनेंट्स को आपने इंटीग्रेट किया है, अब इंटीग्रेशन करने के बाद क्या वो आपको रेलेवेंट आउटपुट करेक्टली दे रहे हैं, क्या आप एक सही प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और फंक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग में पर्पस आपका क्या है कि उन एरर्स को फोकस किया जाए, अनकवर किया जाए जो कि सिस्टम इनपुट या आउटपुट से रिलेटेड है, जो कि सिस्टम की फंक्शन या इंफॉर्मेशन डाटा से रिलेटेड है, जो कि एक्सटर्नल पार्ट्स या यूज़र इंटरफेसेस से रिलेटेड हैं और सिस्टम के बिहेवियर या परफॉर्मेंस से रिलेटेड किसी किस्म के एरर्स हैं। सो वो आप वैलिडेशन टेस्टिंग में करते हैं। इस पर्टिकुलर फिगर में आप देख सकते हैं कि एक सिस्टम है, वो कोई ऑपरेशंस, फंक्शंस और बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है। सो इंटरफेस के थ्रू आप, यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप इंटरेक्ट करते हैं, आप उसको वैलिडेट करते हैं और देखते हैं कि रेलेवेंट आउटपुट एक्सटर्नल इंटरफेसेस पर आ रही है या नहीं। वैलिडेशन टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है, इसके लिए भी आपके टेस्ट इंजीनियर्स हैं और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के डेडिकेटेड लोग हैं जो कि आपकी वैलिडेशन टेस्टिंग करते हैं। लास्टली आपके पास सिस्टम टेस्टिंग है। सिस्टम टेस्टिंग में आप ओवरऑल सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं। आपका पर्पस ये है कि वेरीफाई करें कि ऑल एलिमेंट्स मैश प्रॉपरली, सारे यूनिट्स मिलकर इकट्ठा ओवरऑल एक अच्छा सिस्टम बना रहे हैं और जो जिस एनवायरनमेंट में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा या चलेगा, ऑपरेट होगा, उस एनवायरनमेंट में भी इसमें कोई एरर्स नहीं है और यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं। इसको हम सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। सिस्टम टेस्टिंग में फोकस इस चीज़ पर किया जाता है कि आप इन एरियाज में से एरर निकालें। सिस्टम फंक्शन से रिलेटेड अगर कोई है, रिलायबिलिटी और रिकवरेबिलिटी से रिलेटेड अगर कुछ एरर्स हैं, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड अगर कोई एरर्स हैं, हो सकता है सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा आपने बना लिया लेकिन आप जाके क्लाइंट की इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करें, वहाँ पे मसले मसाइल आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह स्पेशल कंडीशन, ठीक है, जिस मशीन पे आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जो नेटवर्क इसके साथ कनेक्ट होगा, जिस हार्डवेयर पर आप इसको इंस्टॉल करेंगे या अगर इसने किसी और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करना है, ठीक है, सो ये सारे के सारे एरियाज आप चेक करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग आपकी कौन परफॉर्म करते हैं? अगेन सिस्टम टेस्टिंग भी आपके टेस्ट इंजीनियर्स हैं या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के डेडिकेटेड लोग हैं जो कि आपकी सिस्टम टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं।
अच्छा, when a system is to be marketed as a software product, a testing process called beta testing is often used. बाज़-औक़ात आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट बन गया है, सिस्टम आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन आप उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं और आप कहते हैं कि इसका बीटा वर्जन है। बीटा वर्जन का मतलब ये होता है कि आपने अपने हिसाब से, अपने एंड से तो सारे एरर्स उसमें से निकाल लिए हैं, लेकिन अब आप यूजर्स को कह रहे हैं कि यूजर्स इसको यूज करें, एक्चुअल मशीन पे उसको इंस्टॉल करें, और अगर वहां पे कोई एरर्स हैं, बग्स हैं, सो वो रिपोर्ट किए जाएं ताकि आप उनको रिमूव कर सकें। सो बीटा वर्जन यूजुअली एक ट्रायल वर्जन होता है, और ट्रायल वर्जन उस सॉफ्टवेयर का इसलिए लॉन्च किया जाता है कि अगर इसमें कोई ऐसे एरर्स रह गए हैं जो कि इवन सॉफ्टवेयर टेस्टर्स या क्वालिटी एश्योरेंस के जो पीपल हैं उनसे भी आइडेंटिफाई नहीं हो सके, सो वो जब बीटा वर्जन एक्चुअल एनवायरनमेंट, एक्चुअल मशीन पे इंस्टॉल होता है, वहां पे ऐसे हिडन एरर्स अनकवर होते हैं और फिर उस सॉफ्टवेयर टीम को उन एरर्स को रिकवर करने का मौका मिलता है। फिर बीटा वर्जन के बाद वो एक्चुअल उस सॉफ्टवेयर का वर्जन यूज करते हैं। यही रीजन है कि बीटा वर्जन के ढेर सारे सॉफ्टवेयर फ्री टू यूज होते हैं। ठीक है, फ्री वो इसलिए होते हैं ताकि वो आपको फ्रीली दे रहे हैं, आप डाउनलोड करें, आप यूज करें, और अगर कोई उसमें एरर्स हैं सो वो उनको रिपोर्ट हो जाएं। ठीक है, और जब वो सॉफ्टवेयर हाउस या सॉफ्टवेयर टीम इस चीज को रियलाइज कर लेती है कि अब इसमें बीटा वर्जन के जितने एरर्स हैं वो भी रिमूव हो गए, फिर उस सॉफ्टवेयर को फॉर्मली और एज अ लाइसेंस्ड पैकेज लॉन्च कर दिया जाता है। सो दैट वाज सिस्टम टेस्टिंग। जी, यहां से मैं स्लाइड्स को कट कर रहा हूं और मैं, अच्छा ये एक स्लाइड है जिसको मैं पढ़ रहा हूं। लास्टली, टेस्ट इश्यूज इन रियल वर्ल्ड। टेस्टिंग इतनी आसान नहीं है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। कुछ रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं, जैसे कि टेस्टिंग को करने के लिए कॉस्ट लगती है, वेरी एक्सपेंसिव है। ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक टेस्टिंग कैसे की जाए, इसकी डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं। किस वक्त टेस्टिंग शुरू करनी चाहिए, कहां पर जाके टेस्टिंग खत्म करनी चाहिए, स्टॉप टेस्टिंग कब करनी चाहिए, टेस्टिंग का स्कोप आइडेंटिफाई करना, ये भी इशू है। ठीक है, इसी तरह टेस्ट क्राइटेरियाज, टेस्ट कवरेज, एडिक्वेट टेस्टिंग, ये सारी चीजें रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं। और इसके अलावा जो अदर टेस्टिंग के इश्यूज हो सकते हैं वो आप जानते हैं कि GUI की टेस्टिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की टेस्टिंग डिफरेंट है देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के। इसी तरह कंपोनेंट टेस्टिंग इज डिफरेंट देन कंपोनेंट्स बेस्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। डोमेन स्पेसिफिक फीचर टेस्टिंग इज डिफरेंट देन टेस्टिंग वेब बेस्ड सिस्टम। सो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग टेक्निक्स, मेथड्स, क्राइटेरियाज, टूल्स हैं। ठीक है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से जो टेस्ट, इन सारी चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें जो है ये कुछ रियल वर्ल्ड के टेस्टिंग के इश्यूज हैं, बट स्टिल इन चीज़ों के बावजूद भी हमें टेस्टिंग को परफॉर्म करना है। So that was some test issues in the real world. Here is the summary of today's lecture. In today's lecture, we explored different definitions of software testing. We have also seen that there are different roles who actually perform testing on a software. These role and these people include test managers, test engineers, software quality assurance people. So these are dedicated people who actually perform the testing. And lastly, we talked about unit testing, integration testing, validation testing, and system testing. We have seen some examples and have explored that how unit integration, validation, and system testing help us uncovering the errors which are hidden in any part of the software. In our next lecture, we will continue our discussion on software testing, and we will see some more aspects of software testing, and we'll see how to achieve software quality by deploying different types of test cases and test scenarios. I hope you enjoyed today's lecture. I'll see you with more details in our next lecture. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.